بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور آپ میری باتوں کو غور سے سنیے گا اور ان کے اوپر عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے ماں کی شان۔ میں اس قابل تو نہیں، نہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں جن سے میں ماں کی شان بیان کر سکوں، کیونکہ اس کی شان بہت اونچی ہے۔ دوستو، ماں کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ ماں کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے ایک معجزہ دکھایا لوگوں کو کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا کر دیا، لیکن کوئی بھی ایسا بچہ دنیا میں نہیں آیا جو ماں کے بغیر آیا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ باپ کے بغیر تو دنیا میں تشریف لے آئے لیکن ماں کے بغیر نہیں آئے۔ تو یہاں اس معجزے سے آپ حساب لگا لو کہ ماں کی کتنی شان ہے کہ اللہ نے معجزہ بھی دکھایا تو وہ باپ کے بغیر بچہ پیدا کر کے، نہ کہ ماں کے بغیر بچہ پیدا کر کے۔ تو ماں کی یہ شان ہے، اس کے بغیر آپ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اب ایک ایسی ہستی جو 9 ماہ تک آپ کو اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھتی ہے، اس کے بعد آپ کو کھانا سکھاتی ہے، آپ کو چلنا سکھاتی ہے، آپ کو پہننا سکھاتی ہے، آپ کو بولنا سکھاتی ہے، اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ماں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، ماں آپ چپ کر کے بیٹھو۔ دوستو، یہ سب سے بڑی گستاخی ہوتی ہے، اپنے والدین کو یہ بات کہہ دینا کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، جنہوں نے تجھے بولنا سکھایا، جنہوں نے تجھے کھڑا ہونا سکھایا، جنہوں نے تجھے چلنا سکھایا، جنہوں نے تجھے پڑھنا سکھایا، جنہوں نے تیرے کھانے کا انتظام کیا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اتنا عقل مند ہو گیا۔ تو دوستو، کبھی بھی آپ اپنی ماں کو یہ الفاظ نہ کہا کرو کہ ماں جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ ماں کو سب پتہ ہوتا ہے، ماں ہمیشہ سچی ہوتی ہے، مائیں کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ جو لوگ ماؤں کی قدر نہیں کرتے، خدا کی قسم ان کو میں نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے دنیا میں، رول کے مرتے دیکھا ہے، جنہوں نے ماؤں کی قدر نہیں کی، جنہوں نے ماؤں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی، جنہوں نے ماؤں کے ساتھ قطع کلامی کی۔ یار ماں کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی ہے، ماں کے ساتھ کیسی لڑائی ہے بندے کی؟ کوئی بھی ہوش ربا انسان جو ہے وہ ماں کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر تھوڑا سا بھی عقل کا مادہ ہونا، وہ کبھی اپنی ماں کو برا نہیں کہتا، اپنی ماں کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہتا۔ ماں تو ہستی ایسی ہے جس کے قدموں تلے تو آپ کی جنت ہے، اس کے جو زبان ہے اس سے آپ کے لیے بددعا نہیں نکل سکتی۔ آپ چاہے جتنا مرضی اس کو برا کہتے رہو، اس نے ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو دوستو، جو لوگ اپنی ماؤں سے ناراض ہیں، میں آج ہی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آج ہی وہ جائیں اور اپنی ماں کے قدموں میں پڑھ کے معافی مانگ لیں، نہیں تو نہ ان کی دنیا میں جان چھوٹے گی نہ آخرت میں۔ یہ میری بات نوٹ کر لو، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکو گے دنیا میں، یہ آپ کے بیوی بچے آپ کے کبھی کام نہیں آئیں گے۔ جو کام آپ کا ماں کر سکتی ہے نا، وہ بیوی بچے اور کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں۔ آج ہی جن لوگوں کی مائیں ان سے ناراض ہیں، وہ میرے کہنے پہ جا کے اپنی ماؤں کو منا کے دیکھو، وہ آپ کو باتیں نہیں سنائیں گی کہ بیٹا آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ ایک دفعہ بس معافی مانگ لو جا کے ماں سے سچے دل سے، تو ماں کا دل تو موم ہوتا ہے، تو اسی وقت مان جائے گی۔ تو ماں کی قدر جن لوگوں نے کی، انہوں نے دنیا میں ترقی کی۔ حضرت اویس کرنی کو جو رتبہ ملا صرف ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رتبہ ملا ان کی ماں کی وجہ سے ملا۔ جس کو بھی رتبہ ملا اس کی ماں کی وجہ سے ملا۔ ماں کی دعا ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کتنا تیز موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہوتا ہمیں ایکسیڈنٹ کا، کس وجہ سے نہیں ہوتا ہمارا ایکسیڈنٹ، یا کس وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور
माँ की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो जो लोग जो हैं अपनी माँओं से दूर हो गए हैं, स्पेशली मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो आज ही अपनी माँ के कदमों में आएँ और आके उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगें और उनसे कहें कि माँ हमसे गलती हो गई थी, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि माँ का कोई कसूर नहीं होता। कोई भी माँ अपने बच्चे को बुरा नहीं समझती। हम खुद बुरे बनते हैं तो वो बुरा कहते हैं, फिर भी वो बुरा नहीं कहती, लोगों के सामने पर्दे डालती हैं। जितना भी बच्चा बुरा हो ना, कोई भी माँ ये नहीं कहेगी कि मेरा बेटा बुरा है। उसकी कोशिश यही होती है कि लोगों के सामने ये कहे कि मेरा बच्चा अच्छा है। लेकिन जब आप एक हद से तजावज़ कर जाते हैं, जब आप माँ का दिल तोड़ देते हैं, तो फिर माँ कहती है कि वो बुरा है, लेकिन दिल से फिर भी दुआ निकलती है। तो दोस्तों, कभी भी अपनी माँ को इग्नोर ना करना। अगर उसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो आराम से ना सो जाना। पता उस वक्त चलता है जब माएँ दुनिया से चली जाती हैं। यकीन करो, घर में आने को दिल नहीं करता। जिन के साथ ये हो चुकी है ना, जिनकी माएँ जिंदा नहीं रही, उनसे पूछो माँ क्या होती है। जिन लोगों के पास है वो कदर करो। बाद में तो बंदे के पास रह ही कुछ नहीं जाता। माँ ही तो एक हस्ती है जिसकी वजह से हमारे पास सारा कुछ है। यकीन करो, जब से हमारी माँ फौत हुई है, हमारा दिल ही नहीं करता घर जाने को। सब कुछ उजड़ जाता है बंदे का। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपना घर ना उजाड़ो, वो अपनी माँओं के ऊपर तवज्जो दो, उनके कदमों में बैठो, उनके चेहरे की ज़ियारत करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ का चेहरा देखा करो, तुम्हें कबूल हज का सवाब हो। उधर जाते हो आप लोग इतना पैसा खर्च करके, पता नहीं आपका हज कबूल होता है या नहीं होता। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर में अपनी माँ का चेहरा देखो तो आपका हज कबूल हो जाएगा। और अपनी माँ की कब्रों पे जाया करो, उनको पढ़ कर बख्शा करो। उनके वालिदैन के लिए यही सबसे बड़ी नेमत होती है कि उनकी औलाद जो है वो बाद में पढ़ के उनको बख्शे। दूसरों के पढ़ने का उनको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना उनके बच्चों को होता। तो सब लोग जो हैं, जो अपनी माँओं से नाराज़ हैं, आज ही वो अपनी माँओं के कदमे पड़ जाएं। यकीन करें आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। आपको ना पैसे की टेंशन रहेगी, ना आपको किसी और चीज़ की टेंशन रहेगी। आपकी सारी टेंशन 1 मिनट में हल हो जाएगी। जो लोग माँओं की कदर करते हैं, माँओं को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके पास हर चीज़ होती है। अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला किसी चीज़ की कमी नहीं देता। तो आप भी जो लोग माँओं से नाराज़ हैं, उनसे मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी माँओं के कदमों में पड़ जाएं, जाके सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। माँ कभी भी उनको इनकार नहीं करेगी। बाद में ये आपको मौका नहीं मिलेगा। जब माँ मर जाती है उसके बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। खिदमत वही है जो आप उनकी ज़िंदा होते हुए कर रहे हो। उनको दबाया करो, उनको कहीं पे दर्द होता है तो वहाँ पे दबाया करो, उनके पास बैठा करो। आपका माँ के पास बैठना उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बायस होता है। ये फेसबुक, व्हाट्सअप, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत उम्र पड़ी है, सारी उम्र यूज़ करते रहेंगे हम। लेकिन अगर एक दफ़ा माँ चली जाए वो नहीं आती दोबारा। तो अपना पूरा टाइम दो अपने वालिदैन के ऊपर, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखो। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वालिदैन कोई चीज़ मांगते नहीं हैं, वो शर्माते हैं। तो आप लोग खुद से ख्याल रखो कि उनकी क्या ज़रूरत है। जब आप उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखोगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। तो जब आप उनकी ज़रूरतें पूरी करोगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतें पूरी कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। नमाज हम 5 टाइम की पढ़ते हैं लेकिन माँ की कदर नहीं करते। रोज़ा हम रख लेते हैं लेकिन माँ की कदर नहीं करते। और बहुत सारी इबादत हम करते हैं लेकिन माँ की कदर नहीं करते। दोस्तों, आपकी सब इबादतें, मैं ये दावे से कह रहा हूँ, ज़ाया हो जाएंगी अगर आपने अपनी माँ से माफ़ी ना मांगी। अगर इसी हालत में आपकी माँ फौत हो गई और आप नाराज़ थे तो वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। दोस्तों, आज ही जाओ, जो भी अपनी माँ से नाराज़ है वो जाके अपनी माँ के कदमों में पड़ जाओ और माफ़ी मांगो। और माँ का तो दिल ही बड़ा नरम होता है, मोम की तरह। आपका जाना है, बस आपके जाने की देर है, उसने सब कुछ भूल जाना है। तो जिस से भी ये कोताही हुई है, ये गुस्ताखी हुई है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है माँ के आगे से बोलना, माँ के खिलाफ बातें करना। इससे बड़ा गुनाह है ही कोई नहीं दुनिया में। तो
तो वो आज ही अपनी माँ से माफ़ी मांग लो तो अल्लाह ताला उनके सारे जो हालात है वो सेट कर देगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग माफ़ी मांगो जाके, और माँओं की कदर करना सीखो। माएँ बार बार नहीं मिलती, एक दफ़ा चली जाए ना तो फिर नींद नहीं आती, नींदें उड़ जाती हैं, घर तबाह बर्बाद हो जाता है, वीरान लगता है घर, ऐसा लगता है कि घर में है ही कोई नहीं, घर की रौनकें चली जाती हैं। यकीन करो, उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं हैं किस तरह गुजारा कर रहे हैं वो। उनके घर कब्रिस्तान की तरह लगते हैं, इतनी खामोशी होती है। जिनकी माएँ जाती हैं ना, उनको पूछो उनके दिल पे क्या गुजरती है। जिनकी जिंदा है वो कदर करो। अगर आप माँ की कदर करोगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। लेकिन माँ की ज़रूरियात का ख्याल रखना। इसने आपको 25 साल तक, 20-25 साल तक आपको जो है वो संभाला, आपके लिए तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। जब आप बड़े हो गए फिर आपकी शादी की, शादी के बाद बीवी आपके लिए सारा कुछ नहीं हो जाती। माँ का मुकाम फिर भी बीवी से ऊंचा है, सबसे ऊंचा मुकाम माँ का ही है। माँ तो वो हस्ती है जिसकी शान लफ्ज़ों में बयान की ही नहीं जा सकती। मुझ जैसा जो आम सा बंदा है वो कैसे बयान कर सकता है। बड़े बड़े आलम जवाब दे जाते हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं जिससे हम माँ की शान बयान कर सकें। इतनी ऊंची शान अल्लाह ने माँ को दी है, क्योंकि वो तकलीफ़ जो आपको पैदा करते वक्त उसने देखी होती है, हम तो उसका देन ही नहीं दे सकते। बाकी हम उसका क्या कर्ज उतारेंगे जो सारी उम्र हमारे लिए स्ट्रगल करती है। कितनी भी गरीब हो, कोशिश उसकी ये होती है कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाए। कभी भी कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है वो मैले कपड़ों में स्कूल जाए। अब हम देखते हैं घरों के अंदर जो है माएँ रोज़ाना कपड़े धो के बच्चों को भेजती हैं स्कूल। इस वजह से मेरे बच्चे के बारे में बात ना कर दे कि इसकी माँ ने जो है वो इसके कपड़े नहीं धोए, या ये मेरा बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। माएँ तो इस हद तक हमारा एहसास करती हैं, लेकिन यूँ ही हम जवान हो जाते हैं, हमारे अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हम भी किसी के बच्चे हैं। जिस तरह आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, जिस तरह आप उनसे लाड़ लड़ाते हो आके, और अपनी माँ को भूल जाते हो कि वो भी बैठी है अंदर, और सीधे अपने बच्चों के पास चले जाते हो, तो उस वक्त जो माँ के दिल पे गुजरती है ना, वो वही जान सकती है।